Assalamu alaikum dear students, welcome back to chemistry. This is some basic principles and techniques. पिछले वीडियो में हमने रेजोनेंस इफेक्ट की बात की थी जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं. Today we will have in this video some more examples so that you will understand this resonance effect very effectively. So let's start it. So here is a compound having positive charge on carbon atom. So I will read it down. CH2 double bond, CH single bond, CH2. So here is pi bond having pi electrons. These pi electrons will get shifted towards the sigma bond. So the positive charge on this carbon atom, this will be transferred to this carbon atom. Here you can see, so as you know already that resonating structures, in between resonating structures we draw a double-sided arrow. So positive charge was on this carbon atom. Now you can see this another structure, resonating structure. The positive charge gets transferred to this carbon atom which is on the left side. So these structures are called resonating structures. These structures are called resonating structures. So this compound has two resonating structures. Here you can see the real structure of this compound, which is called hybrid structure. So CH2 CH CH2. So यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हो सकता है, इस कार्बन पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर. तो इसकी जो इन रेजोनेशन जो प्रॉपर्टीज ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दिखा सकते हैं. सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर शोन बाय दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. Dear students, one more compound. Now in this compound we have negative charge on carbon atom. Here you can see CH2 double bond CH single bond CH2. Once again these pi electrons will get shifted towards the sigma bond. So the compound will be CH2 single bond CH double bond CH2. Dear students, what happens in between these resonating structures? Here negative charge was lying on this carbon atom which is on the right. Now this negative charge will get shifted towards left carbon atom, and these pi electrons are shifted towards this CH2. Here you can see its hybrid structure CH2 CH2. So these dot lines they represent the double bond, possibility of double bond. यहाँ पे भी double bond हो सकता है, यहाँ पर भी double bond हो सकता है. इस वाले कार्बन पे भी del negative charge हो सकता है, इस वाले कार्बन पे भी del negative charge हो सकता है. So this is the hybrid structure of this compound. Dear students, I would like to mention here this negative charge means अगर यहाँ पे CH3 होता तो एक हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया है. एक तो अपना है कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और उस वाले हाइड्रोजन का एटम, तो इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है. तो पहले वाले एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स, इस वाले केस में अगर यहाँ पे CH3 होता तो एक हाइड्रोजन एटम छोड़ के उसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन साथ लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है कार्बन, तो इसलिए दैट्स व्हाई हियर इज पॉजिटिव चार्ज. इस वाले केस में यहाँ हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया है, दैट्स व्हाई हियर इज नेगेटिव चार्ज. सो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. Dear students, third example, carbonate ion CO3. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कार्बन ऑक्सीजन 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 3 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज. सो this is the resonating structure of this. Here you can say these pi electrons will get shifted towards this. Here you can see this these pi electrons. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड. तो तीसरे वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर. सो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देख सकते हैं. सो दीज आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन. यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये कार्बन ऑक्सीजन 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 और तीनों पे डेल नेगेटिव चार्ज, और तीनों के कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं विद दीज डॉट लाइंस. सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन.
डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये नेगेटिव जो कंपाउंड जिस पे नेगेटिव चार्ज थी कार्बन एटम पे, तो इसको इस तरीके से भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मींस एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक वो इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन ही ले लें, हाइड्रोजन यहाँ छोड़ दिया गया है, तो ये इसको हम वी कैन कॉल इट एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड की तरफ और वहां पे बनाएंगे पाई बॉन्ड, और ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, सो दे विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करने के आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज एग्जाम्पल्स हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है। इट रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व शिफ्टिंग, यानी कि शिफ्टिंग, या आप ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड, यानी विद इन द कंपाउंड या शिफ्ट हो रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, इन रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिनन दैट इज ओनली टेक्स प्लेस विद इन द कंपाउंड। ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ये मॉलिक्यूल जो है, ये कंपाउंड जो होता है उसी के अंदर ये इट टेक्स प्लेस। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है पहले पॉइंट में दैट इट टेक्स प्लेस विद इन द कंपाउंड। पॉइंट नंबर 3, रेजोनेंस इफेक्ट इज ए हाइपोथेटिकल phenomenon that is it is an imaginary effect। Dear students, ये आपको मालूम होना चाहिए जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, यानी कि ये एक इमेजिनरी इफेक्ट है। दैट मीन्स ये जो किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। एक्चुअल स्ट्रक्चर्स का वही होता है जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब नहीं करते हैं। एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड जो डिस्क्राइब करते हैं दैट इज ओनली इट्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो हम 4th पॉइंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड्स और इमेजिनरी, यानी कि जब रेजोनेंस इफेक्ट ही हाइपोथेटिकल है यानी इमेजिनरी है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इमेजिनरी होते हैं। जो स्टूडेंट्स हमने बात की थी इन स्ट्रक्चर्स के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, लास्ट में हमने उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी डाला था। लेट्स सी व्हाट इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड व्हिच एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड दैट आर नॉट शोन बाय इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि असल में जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है, एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जब हम डिस्क्राइब करते हैं वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से नहीं निकलते हैं, वो उसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो उसी से सामने आते हैं एक्चुअली। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।